تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کرتا ہے۔ آپ مالک کو مختار ہیں، آپ کے پاس فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کے پاس آؤں روح قبض کرنے کے نہیں آؤں، اجازت نہیں تو ٹھیک ہے ورنہ لوٹ جاؤں۔ وہ سرکار کا نواسا ان کی گود میں انتقال کرے، آپ کی آنکھیں آنسو بہانے لگی، تب حضور کیا فرماتے ہیں کہ میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے حضور آپ ہی روتے ہیں؟ کہا ہاں، آنکھ سے آنسو بہنا یہ رحمت ہے، لیکن دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے، دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے۔ کیا بات ہے، دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے۔ یہ تو سرکار کا اپنا نواسا اور سرکار کا اپنا بیٹا جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، اپنا بیٹا حضور کا انتقال ہوا۔ آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے ابراہیم میں تمہاری جدائی سے مغموم ہوں، انی بفراقک لمحزون، میں تیری جدائی سے مغموم ہوں، تبکی عینی، میری آنکھ آنسو بہا رہی، لیکن میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے۔ دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے۔ حضور کا بیٹا مر گیا، یہاں ایک بوڑھا کسی کا مر جاتا ہے، عمر ہے 40-50 کے بعد مرنے کی عمر ہوتی ہے، آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے، ایک بیٹا کسی کے پاس مر جائے، کسی کا باپ بوڑھا مر جائے جس طرح سے بہانہ کرنے والا، تو بغل والا عامل جھوٹا کیا بولتا ہے؟ کر دیا ہے ابھی تمہارا باپ مرا ہے، ماں مرو گی، تم مرو گے، 5 سال میں تیرا سارا گھر اجڑ گیا، ہر اجاڑنے والا کالا جادو کر دیا گیا۔ اب یہ ڈر ہمارے کہتا ہے کہ ہاں کوئی علاج ہے اس کا؟ کہا ارے دنیا میں کس کا علاج نہیں یار، سب کا علاج کیسے ہوگا؟ کالا جادو 51,000 روپے لگے، مدرسے میں 51 روپے نہیں دیتے، اب وہاں جھوٹ بولا 51,000 روپے کر دیا، اور وہ جھوٹا بولا، بس کل تک کالا جادو ختم ہو، کل تک کالا جادو ختم ہو گیا۔ جھوٹے کو جھوٹنا چاہیے، جیسے پیر ویسے مرید، اسی طرح سے ہوتا ہے۔ ذرا اور سوچئے، موت 4000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی گئی، کون کتنا جیے گا، کون کہاں مرے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی۔ جناب دیکھیے حضور کو لوگ پڑھتے رہے، سرکار کی سیرت کا لوگ مطالعہ نہیں کریں، آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تب پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہے۔ جب سرکار کا اپنا بیٹا انتقال کر گیا تو آپ کا بیٹا اگر مر گیا تو عامل کے پاس کیا دوڑ کے جائے؟ تو ایمان کمزور کر گیا، تو یہ سمجھتے کہ موت لکھی ہوئی ہے اپنے وقت پہ وہ مر گیا۔ حضور فرماتے ہیں فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشیطان، آقا کیا فرماتے ہیں؟ لو مت کہو، کاش مت کہو، کاش ان کیس ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا۔ فلا تقل لو، لو مت کہو، ان کیس میں باپ کو علم سے لے کے چلا گیا ہوتا تو میرا باپ بچ جاتا۔ نو نہیں، لا مت، ان کیس مت کہو، فلا تقل لو، لو منے ان کیس، اگر، یہ عربی کا لفظ ہے، لو ان کیس مت کہو، اگر میں علم سے لے کے جاتا تو میرا باپ بچ گیا ہوتا، حضور کہتے ہیں ایسا مت کہو۔ وَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ لفظ لو شیطانی سوچ کا دروازہ کھولتا ہے، لفظ لو شیطانی سوچ کا دروازہ کھولتا ہے، شیطانی سوچ۔ اے آواز دو، پیچھے پیچھے والوں میں آواز دو، پیچھے والوں کو آواز مائک تک بول رہا ہے، میں تھوڑا سا یہ پیچھے کو کوئی کمنٹ بڑھاؤ، آواز تھوڑی بڑھاؤ، پیچھے پیچھے والے ساؤنڈ۔ ہر آدمی اپنے بزنس میں، یہ بندہ بزنس کرنے آیا، ساؤنڈ کا پیسہ ہے، اس کو ٹھیک ڈھنگ سے بیٹھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، موبائل میں عقل چوپٹ پر۔ حضور نے 1400 سال پہلے کیا کہا؟ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں۔ یہ حدیث سنو سرکار کی، رسول میری طرف غور سے سنو، بکواس مت کرو۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ تم سو اقولو اکثر ذالک، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی، لوگ پاگل ہو جائیں گے۔ بس السلام علیکم، ٹھہریے، کانچ کھولنا ہے،
गुटखा फेंकना है, तब वालेकुम सलाम कहिए ऐसे। अगर उसी हालत में मौत आ गई तो क्या? मौत तो एक सेकंड में आ सकती है, अचानक मौत आती है। ऐसा नहीं कि बहुत तैयारी के बाद मौत आएगी, नहीं, मौत अचानक आती, कयामत अचानक आएगी, दुनिया का विनाश अचानक होगा, जलजला अचानक आता है, बता के नहीं आता, मौत बता के नहीं आती, अचानक आती है। कैंसर वाला 10 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, ऑक्सीजन पे मर ही नहीं रहा। ये 18 साल का जवान अभी बाइक लेके निकला, कुछ नहीं, बस एक कुत्ता सामने आया था, ऐसे मोड़ा, गिरा, मर, अचानक मौत अचानक आती है। मौत क़यामत अचानक आती है। इसलिए ये मत कहना कि हम वजू करके तैयार रहेंगे, कलमा पढ़ के तब मौत आएगी। यहाँ तो मौत कलमा पढ़ने का गलत नहीं देगी। इसलिए हर वक्त जबान को खाली रखो, ये गुस्सा छोड़ दो, हमेशा जबान पे कलमा जारी रखो। जब मौत आनी में आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह तखलल जन्नह, बस आखिरी बोली कलमा और जन्नत दाखिल हो जाओ। मोबाइल में लगा हुआ चौपट हो गया, दुनिया का सारा निजाम चौपट। सब लोग बस वजू में जो कहा है सच है, अकल रहती तो फिर आदमी सोच समझ के सारा काम करता। अल्लाह ताला हम सबों को नेक महफिलों की कदर की तौफीक अता फरमाए। अब आवाज पहुंच नहीं कोई आपके पीछे से आवाज आ रही है? ठीक है, माशाअल्लाह। ये देखिए मांडली वालों ने कितना जबरदस्त काम, बिहार वाले को भी सबक सीखना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा वाले, क्योंकि वहां लिखा हुआ तमाम पहले स्टेज से इज्तिमा दौरान इजलास मोबाइल फोन के इस्तेमाल से पहले से। कल ही मैंने एक मौलाना साहब को कहा, जबकि मैं तकरीर करता हूँ एक एक जुमला कायदे से मैं बोलता हूँ, ताकि कोई कॉमेडी कोई किस्सा कहानी नहीं बल्कि काम की बातें बोलता हूँ, और ताकि लोगों की तवज्जो बनी रहे। मेहनत में अपने ऊपर करता हूँ, मैं बीच में रेस्ट नहीं करता हूँ, आराम नहीं करता हूँ, कंटिन्यू लगातार 2-2, 2.5 घंटे बोलता हूँ। तो फिर उसके बावजूद ये बंदा बगल में बैठ के मोबाइल चला, सारा मजमा गौर से सुन रहा है, सबकी तवज्जो है, मैं अच्छी सी बातें बता रहा हूँ, ये बंदा मुरी सांख होकर के मोबाइल चला। तब मुझको कहना पड़ा 10-20 मिनट, आधा घंटा वेट करने के बाद शायद हमारे इस टॉपिक पे वो आंख उठाएगा, शायद हमारी इस जुमले पे वो सुभान अल्लाह बोलेगा या हमारी तरफ देखेगा। जब मैं देखा कि ये बंदा मस्त है, तब सारे लोग तकरीर सुनने में मस्त है और मेरा भाई मोबाइल चलाने में मस्त। इस कदर मोबाइल का रसिया भूखा, जैसे कि पहली बार मोबाइल हाथ में लगा हो और उसके बगैर चैन नहीं है, जैसे कोई मर रहा हो, कोई मर गया हो, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हो, नहीं पहुंचेगा, जनाजे की नमाज छूट गए। इस कदर रसिया। कानपुर में एक इंजीनियर मुझको छोड़ने के लिए आ रहा था रेलवे स्टेशन पे, मैंने इसी तरह की बातें की, मोबाइल के नुकसानात, उसके फवायद में मैंने बातें की। आज उसको डीएम बनना था, वो चपरासी भी नहीं बन पाया इस मोबाइल की वजह से। जिसको कनी से फातिमा बनकर अपने गोद में मुजाहिद को जन्म देना था, फकीर पैदा करना था, इस मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से वो मुजाहिद क्या पैदा करेगी? वो मुश्रिकों की गोद में जाकर के काफिर औरतें वही औरत है जो इमामत तो नहीं कर सकती है, इमाम जन्म देती है। औरत नबी नहीं बन सकती है, मगर नबी को जन्म देती है औरत। जितने नबी पैदा हुए सारे नबी अपनी माँ की शिकम से, और नबी नहीं बनी कोई औरत, मगर नबी की माँ बनी, नबी की माँ बनी। जहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम कोई माँ बाप नहीं, मगर उसके बाद जितने नबी पैदा हुए सारे नबी माँ की शिकम से पैदा हुए। एक नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जिसका बाप नहीं लेकिन माँ है, माँ की शिकम से पैदा हुए। इसलिए औरतें नहीं पैदा हुई है कि वह जींस टी शर्ट पहन करके 2-4-10 मर्दों की गोद में झूलती रहे, 2-4-10 मर्दों के सामने चेहरा पेश करके साथ अपनी महफिल की जीनत बनी रहे। नहीं, वो पैदा इसलिए हुई है ताकि घर को रश्क जन्नत बनाए, फकीर पैदा करे, मुहद्दिस पैदा करे, मुजद्दिद पैदा करे, गौस पैदा करे, कुतुब पैदा करे, अब्दाल पैदा करे, ये से पैदा हुई। मगर ये मोबाइल ने इनको सड़ा दिया, मोबाइल ने इनको फाहिशा बना दिया, मोबाइल ने इसकी शख्सियत की पाकिज़गी को छीन लिया। इसलिए मैं अपनी माँ बहन बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अगर अच्छी रहोगी तब समाज के लोग अच्छे रहेंगे, तब समाज तेरा बच्चा अच्छा रहेगा। क्योंकि तू अगर बिगड़ गई, सड़ गई, तो जमीन अगर सड़ जाती है तो फसलें सड़ी हुई पैदा होती है, अगर जमीन सरखेज होती है तो फसल हरी हरी पैदा होती है। नहीं सुना तुमने?
जमीन थी सैयदा फातिमा, अब बीज डालने वाले थे मौला अली। माँ एक सजदे में सहर कर दे और बाप रात भर सजदा, दिन भर जिहाद। तो अल्लाह ने फातिमा ज़हरा और अली के कोख से वो बच्चा पैदा किया जो खुद साफ नहीं, तारीख साफ पढ़कर दुनिया का नक्शा बदलवा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़ी आला हज़रत। माँ अगर फातिमा ज़हरा की कनीज़ हो जाए तो बेटा हसन तो नहीं पैदा होगा, गुलाम हसन जरूर पैदा हो जाएगा। माँ की सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला। बाप था दिन भर जिहाद, रात भर सजदा। एक खता हो गई वो गुनाह नहीं, इख्तियार के खिलाफ। उस दाग को धोने के लिए 10 साल की नौकरी। उसके बाद एक उलूली लंगड़ी अपाहिज गूंगी जिसको बाप ने कहा इस शर्त पे तेरी माफी होगी कि मेरी लूली लंगड़ी बेटी से शादी करने पर रजामंद हो जाए। गुनाह बड़ा नहीं था, एहतियात के खिलाफ, तकवा के खिलाफ। एक साथ एक सेब फल नदी की सतह पर गुजर रहा है, भूख लगी थी, हालत इस तरह खा लिया। अब मगर दिमाग में ख्याल पैदा हुआ कयामत मगर खुदा ने पूछा मैं क्या जवाब दूंगा। चलो पता लगाओ किसका ये बाग था, कहां से फल गिरा, उससे माफी मांग लें। दुनिया का सारा सितम यही सहले मरने के बाद अल्लाह के सामने बेदाग होके जाए। मुसीबत उठा के पास तक पहुंचा, पता लगाया, मालिक के पास गया, कहा ये जुर्म है, कहा 10 साल नौकरी करो, कहा मैं करूंगा। 10 साल के बाद बोला अब तो माफ करो, कहा कि एक लूली लंगड़ी बेटी है, ब्याह करना पड़ेगा। कहा जुर्म छोटा सा था और इतनी खतरनाक सजा क्यों मिल रही है। लेकिन वो नौजवान के दिमाग में अल्लाह डर कर क़यामत के दिन खड़ा होना, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना। हर मुसलमान के घर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये नहव सर्फ, ये सब बाद में रहे। पहले ये हदीस हर घर में लिखी रहनी चाहिए कि ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। जब तक 4 सवाल का जवाब बंदा क़यामत के दिन नहीं देगा, अपनी जगह से बंदा 1 इंच हट नहीं पाएगा। और उसमें पहला सवाल अन उमरिही फीमा अपना, ये बहुमूल्य जिंदगी किस काम में तुमने गुजारी। ये आंख, ये ज़बान, ये कान, ये नाक, ये पेट में दाना पचाने की सलाहियत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये स्टमक, ये किडनी, ये लीवर, ये लंग्स, ये ब्रेन, ये ब्रेन्स, ये हाथ, हड्डी, ये टखना, ये घुटना, इसका ग्रीस, ये सारी चीजें लाजवाब। यहाँ तक के बाल सर से गिर जाए गंजा, वो बोलेगा 50 खरब में भी दूंगा, मेरे सर के बाल उग जाना चाहिए। गंजा हो जाना, जबान की बात, जबान की बोली का खत्म हो जाना, ये जो अरबों नहीं महासंख्यों नेमतें अल्लाह सर से लेके पांव तक दिया है, क्या करने के लिए? जोकरी करने के लिए, शराब पीने के लिए, दूसरों की बहू बेटी पर कुत्ते की तरह हड्डी पे ताक झांक करने के लिए इसीलिए दिया है। सारी एनर्जी लॉस करके पैसा कमा के, घर बना के, गाड़ी खरीद के और 10 दर्जन बीमारी पैदा करके चक्कर लाके कब्र में सर लेके चले जाए। इसीलिए अल्लाह ने इतनी कीमती जिंदगी दी है। भूमि का जवाब नहीं, आंख का जवाब नहीं, कान का जवाब नहीं, पेट का जवाब नहीं, हाथ पांव का जवाब नहीं, यूरिनरी सिस्टम का जवाब नहीं, यूरिन का जवाब नहीं, स्टूल का जवाब नहीं, सारा सिस्टम लाजवाब। अल्लाह पूछेगा ये जो लाजवाब सिस्टम मैंने तुझको दिया था तुमने क्या किया, किस काम में लगाया? जबान किस काम में, आंख किस काम में, ब्रेन किस काम में, पेट किस काम में, तुमने किस काम में लगाया? या बहुमूल्य जीवन हर बाप बच्चे को बताना होगा। 1 खरब का घर देने से बेहतर है कि एक बाप अपने बच्चे के दिल में अल्लाह का डर पैदा करे, हुजूर की सुन्नत सिखा दे। आज जो डॉक्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, मंत्री की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में कुत्ता, ये जो गली गली में मिनिस्टर की सूरत में कुत्ते पैदा हो गए, बात बात में घर गिरा देना, बात बात में साथ बुलडोजर चला देना, बात बात में आग लगा देना, बात बात में सब तमाशा कला करना। ये जो कलकत्ता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक MBBS करने वाली लड़की के साथ हॉस्पिटल में उसका रेप जो हुआ, जो उसका मर्डर जो हुआ, ये क्या हुआ? कोई गांव देहात के मुसहर टोला में हुआ है। MBBS करने वाली मेडिकल कॉलेज में उसके साथ रेप हुआ है। ये जो दिल्ली
में हॉस्टल में हुआ क्या, देहात में कोई संथाल के टोले में हुआ है? साहब को लिख के जो मुजफ्फरपुर में बिहार में जहां जिस औरतों के शेल्टर रूम का सिलसिला मिनिस्ट्रियों से जुड़ा हुआ था, क्या वो जाहिल लोगों ने किया है? ये जो कोर्ट में रेप, थाने में रेप, रेल में रेप, हवाई जहाज में रेप, स्कूल में रेप, कॉलेज में रेप, हर जगह जो रेप हो रहा है, ये रेप करने वाला है कौन? ये रेपिस्ट कौन है? ये रेपिस्ट वही है जो फिजिक्स तो पढ़ा, केमिस्ट्री तो पढ़ा, मगर अल्लाह का डर दिल में नहीं आया, मुस्तफा के तरीके पे नहीं है, इंसान नहीं बना। ये तमाम कर सका है 2 टाका कमाने वाले डॉक्टर को जन्म दे रही है। एक कर सका है ये मदरसा जहां पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही बताया जाता है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये जायज करे या नहीं करे, ये दूर या कौन, यही सिखाया जाता है। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। इस मदरसे को मालदारों ने उजाड़ दिया कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ने के बाद खाएगा क्या, और काफिरों ने इसे आतंकवादी को अड्डा कहा। वो जमा चाची रेलवे स्टेशन पे करे 18 साल का जवाब, तो बोले कोई बोलेगा मैं नमाज पढ़ूं तो नहीं चलेगा, क्या दिमाग में गोबर भरा है यार? वो छुमा चाची कर रहा है, वो शराब पी रहा है, वो चलेगा, वो नाच रहा है, गा रहा है, चलेगा। मैं 1 मिनट में आजान दे रहा हूं तो पहला ये नहीं चलेगा, मैं सजदा कर रहा हूं तो नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? शराब चलेगी, डांस चलेगा, सिनेमा चलेगा, रेप चलेगा, मर्डर चलेगा। जब दुनिया के लोग इतना घटिया हो जाए कि जब रेप पे राजी हो जाए, सेना पे राजी हो जाए, बलात्कार पे राजी हो जाए, तब इंसान कहां से ढूंढोगे? डॉक्टर की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, प्रिंसिपल की सूरत में जानवर, डीएम की सूरत में जानवर, तो इंसान कहां मिलेगा? इंसान पैदा करने की फैक्ट्री है यह मदरसा। मदरसे को तुमने आतंकवादी का अड्डा कहा और तुमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। जब प्रोटेक्शन घट जाएगा, जब पैदावार घट जाएगी आदमी की, तो समाज शैतानों से भर जाएगा। आज जो समाज गोंडे से, शराबी से, ज़िनाकार से भरा है, तो इंसान बनाने की फैक्ट्री मदरसा कमजोर हो गया। अगर तुम चाहता है कि दोबारा समाज वली से भर जाए, कुतुब से भर जाए, अब्दाल से भर जाए, नमाजी से भर जाए, नेकों से भर जाए, तो दोबारा इस फैक्ट्री को आबाद करना होगा। और जिस दिन ये फैक्ट्री, इंसान बनाने वाली फैक्ट्री आबाद हो गई, तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला जश्न दस्तार में। रोने की जरूरत नहीं है। शोर जो पैदा हो रहे हैं, एक डॉक्टर है आपके अमरोहा, डॉक्टर एमबीबीएस है, एमडी किया हुआ, अब वो डॉक्टर साहब मेरी बीवी तंदे से गिरफ्तार है, डॉक्टर साहब तो नॉर्मल डिलीवरी करवा दें। वो डॉक्टर साहब जान रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, सिर्फ पेन को बढ़ा दें, इंजेक्शन डाल दें, दर्द बढ़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन वो जो 1.5 करोड़ रुपए दे करके एडमिशन करवाया है, और उनका जो प्लान है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 की डिग्री लेके आएगा, वो माल कहां से आएगा? अब वो करता क्या है कि उनके घर में जो एसी लगी है, वो जो 25 लाख की फॉर्च्यूनर, 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा खरीदे हुआ है, अब साहब शहर में लोन लेकर के 50 लाख 1 करोड़ में जो क्लिनिक खोला है, ये कहां से देगा पैसा? तो अब वो उसी पैसे और ईएमआई को अदा करने के लिए इंसान का कपड़ा उतार के जानवर का कपड़ा पहनता है। अब कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, अब बच्चा मर जाएगा या तेरी बीवी मर जाएगी। 1 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, सर्जरी नहीं हुई, तो बच्चा भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा। ये बेचारा घबराया, दौड़ के आया घर, जमीन की तो बेच दिया, नहीं जमीन की तो मकान बेच दिया, मकान गिरवी रख दिया, अपने घर गाँव के मालदारों के सामने सोना चांदी रखा, 1 लाख रुपए डॉक्टर को दिया, डॉक्टर कैंची चलाई। अब 2-3 बच्चा पैदा करने वाली औरत थी, एक तो उनका बच्चा डीएम बनने वाला था, एक किसान बनने वाला था, मुजाहिद बनने वाला था, उसको 2 ही बच्चे पे सीमित कर दिया और गरीब की जमीन बेचवा दी और अपना आशियाना तामीर करने के लिए गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ किया। लोग क्या कहते हैं? ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान नहीं है, क्यों? इंसान वही है जो दूसरे के दर्द को फील कर सके, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, जो दूसरों के दर्द को फील कर सके। ये जानवर है, अपना आशियाना बनाने के लिए गरीब की जमीन को बिछवा दिया। ये हर शहर में तमाशा हो रहा।
हर जगह एक दवाई से फायदा हो सकता है मगर 10 दवाई लिखता है, एक टेस्ट से काम चल सकता है मगर 5 टेस्ट लिखता है, क्योंकि शाम के वक्त में पैथोलॉजी से दलाली उसके पास कैसे आएगी। ये 10 दवाई की कंपनी वाला जो उसको 50,000 की एसी दिया है तो फिर उस कंपनी वाले को फायदा कैसे पहुंचाएगा। इसलिए सब गैस की दवाई, ताकत की दवाई, ये दवाई वो दवाई लिख दिया 10 दवाई को, कोई दवाई को फायदा करेगी। बेचारा गरीब जमीन बेचे साहब, जेवर बेचे, मगर इन डॉक्टरों के घर पे शाम के टाइम में दलाली पहुंचनी चाहिए पैथोलॉजी से भी और फिर मेडिसिन की दुकान से भी। मेरी प्रिस्क्रिप्शन पे तेरी दवाई बिकी है तो तुमने 1 लाख की दवाई बेची है, लाओ मेरे पास 5,000 रुपए डालो। अब 20,000 उसको दिया। अब पैथोलॉजी वाला मेरे पुर्जे से तुम्हारा टेस्ट हुआ, तुम 10,000 कमाए, लाओ मेरे पास 5,000 रुपया, वो मेरा है। ये जानवरों की तादाद बढ़ रही है, कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या हराम क्या हलाल, क्या जायज क्या नाजायज। क्या कहा हुजूर ने, उस वक्त तक 1 इंच बंदे का पांव हटेगा नहीं जब तक कि वो बता नहीं दे कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। सबके दिमाग में जुनून है पैसा कमाने का, जुनून है गाड़ी का मुकाबला, पैसे का मुकाबला, घर का मुकाबला, एक जुनून है। कोई बंदा मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, न बाप बच्चे को बता रहा है, न मस्जिद का इमाम बच्चे को मुफ्ती को बता रहा है। अगर इमाम बता भी रहे हैं तो मुतवल्ली बोलता है ये सारी बातें मत करो, पैसा कमाने की बातें करो, कोई कहानी बोलो, कोई किस्सा बोलो। ये हराम और हलाल पे कौन चलता है मौलाना आजकल। ये हराम और हलाल का चैप्टर लेके तू बैठ गया है। शराब पीना हराम, जिना करना हराम, झूठ बोलना हराम, दूसरों की बहू बेटी को ताक करना हराम, बेपर्दगी हराम, चुस्त कपड़ा पहनना हराम, और वो दुपट्टा जिससे बाल की स्याही झलके वो दुपट्टा ओढ़ना हराम, गर्दन खोलना हराम, दूसरों के सामने चेहरा खोलना हराम, पेट खोलना हराम। ये क्या बातें बोलता है मौलवी। कोई कहानी सुना, कहानी सुना, कहानी सुनने में मजा आता है, कॉमेडी सुनने में मजा आता है, कुरान कौन सुनेगा, हदीस कौन सुनेगा। तो याद रखना, अगर यही बात हुई मकान पे दुकान बच्चे को दिया तो कल मत रोना कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा ससुराल वाले का गुलाम हो गया, मेरा बच्चा मुझको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा है। 100% कसूर उस बाप का है जिसका बेटा आज नाफरमान हो गया, जो माँ बाप को आंख दिखला रहा है, जो अपने बेटे को डांट नहीं सकता है, जो अपनी बीवी अपने ससुराल वाले का गुलाम होकर अपनी माँ और अपने बाप को मारता है। ये 100% कसूर उसी माँ बाप का है। कौन माँ बाप का? जिसने कहा था मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना ये कुर्ता पायजामा पहना देगा, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना जवानी में पगड़ी पहना देगा, कोई तुझको बेटी नहीं देगा, बोलेगा चेहरे पे जंगल है, कौन कोई बेटी तो अपनी बेटी तुझको नहीं देगा। यही माँ बाप है जो मौलाना के पास जाने से रोका था, कहा था सुबह सवेरे इस कोचिंग में जाना है, शाम उस कोचिंग में जाना है, इसकी फिजिक्स बड़ी अच्छी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स है, ये एक्सपर्ट इन इंग्लिश है, ये एक्सपर्ट इन बायोलॉजी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये एक्सपर्ट इन जीके जीएस कंप्यूटर साइंस है। उस एक्सपर्ट के पास यहाँ वहां मौलवी के पास मत जाना, दूर से सलाम कर देना। अब जब इंजीनियर बनने के बाद माँ बाप को तो तमाचा मारना शुरू किया, डीएम बनने के बाद माँ बाप को साउथ मारना शुरू किया, घर से भगाना शुरू किया। किसी अहमदाबाद की लड़की से प्यार हुआ, उसी के साथ अहमदाबाद में संसार दुनिया बसा लिया। बूढ़ा माँ बाप मांडली में जमीन बेच के पढ़ाया था, वो तो अपने क्लासमेट से शादी करके वहां होते मैं तेरे देहात नहीं जाऊंगी। माँ बाप छोड़ दे मगर उसको नहीं छोड़े। एक लड़की जिसको तलाक भी दे सकता है, जिसको छोड़ सकता है, जिसको शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक नहीं 4 शादी बंदा कर लेगा। अगर एक माँ अगर छूट गई तो जिंदगी में दूसरी माँ नहीं मिलेगी, एक बाप छूट गया जिंदगी में दूसरा बाप नहीं मिलेगा। मगर ये जमीन फरोश अपने माँ बाप को छोड़ देता, एक लड़की का चेहरा देख करके अपना समाज छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, चला गया। इसका कसूरवार वो माँ बाप है जिसने बोला था मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, मौलवी के चक्कर में नहीं पड़ा तो अब बेटा हाथ से निकल गया। अगर तुम सुबह शुरू से कह देते कि मौलाना से मुसाफा करना, मौलाना की हदीस सुनना, मौलाना के पास बैठकर आधा घंटा हदीस दिल सुनना, ये मौलाना नहीं बोलता कि माँ को मारना, बाप को मारना, ये मौलाना को हदीस सुनाएगा बेटा कुछ भी हो जाए। ये माँ बाप तेरे लिए जन्नत और दोज़ख दोनों है। माँ बाप की तौहीन हुई तो जहन्नम, माँ बाप की इज्जत हुई तो जन्नत। एक दिन में 100 बार माँ को देखेगा, हज मबरूर का अजर मिलेगा। माँ के पाँव को चूमेगा, जन्नत की चौखट चूमने का मजा मिल जाएगा। बाप का हाथ चूमेगा, जन्नत की खुशबू
सुकून महसूस होगी। ये मौलाना उनको ये सिखाता। तो बच्चा सारी जिंदगी वो चाहे कुछ भी हो मगर माँ बाप को नहीं छोड़ता। अगर कोई लड़की कहती कि मेरा चेहरा चाहिए, माँ बाप को छोड़ना होगा, तो ये लड़का जो मौलाना के पास आता जाता है वो उसके चेहरे पे थूक देगा और कहेगा तुम नहीं मिलेगी तो अल्लाह 4 बीवी हमको दे देगा, और एक माँ नहीं मिली तो कोई दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी, बाप नहीं मिल पाएगा। इसलिए आलिमों के पास आने जाने दे। अगर आलिम के पास तेरा बच्चा आएगा तो ओल्ड एज होम में तू नहीं जाएगा, तेरा पांव चूमा जाएगा, तेरी पेशानी चूमी जाएगी, तेरा चेहरा देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हज़रत। बिहार की कहानी नहीं है, इसी तुम्हारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद बगल में मुरादाबाद है, मुरादाबाद की कहानी। एक अरबपति का बेटा मौलाना के पास आते जाते तकरीर सुनते सुनते मौलाना से दोस्ती करते हुए चेहरे पे दाढ़ी रख लिया। बहुत अरबपति का बेटा था, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया। अरबपति का बेटा था, खूबसूरत तो था ही, कॉलेज में पढ़ रहा था। मौलाना के पास आते जाते दाढ़ी रख लिया, नमाज पढ़ने लगा। कॉलेज जाता था, ग्रेजुएशन वहां से कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी वहां से कर लिया, कॉलेज से पढ़ा। मौलाना के पास आते जाते मोहब्बत दोस्ती की वजह से दाढ़ी रख लिया। सुन्नत की फजीलत सुनते सुनते शादी लगी दूसरे बड़े अरबपति के बेटे से। साफ अंकल का कारोबार है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब वहां अब ये किसी गरीब में थोड़ी शादी करेगा, इसका ये भी एक्सपोर्टर है। अब उनके घर में रिश्ता लगा, लड़की खूबसूरत हुई, पढ़ी लिखी, लड़की को लगा पसंद था, घर वालों को पसंद था, मगर लड़के के चेहरे की दाढ़ी उसको अच्छी नहीं लग रही। उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि कर दो, सब ठीक है मगर दाढ़ी हमको अच्छी नहीं लगती है। पंजाब की खूबसूरत औरत, पंजाब की खूबसूरत औरत, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल और लंबी और पढ़ी लिखी, हायर एजुकेशन, उसके बावजूद पंजाब की बेटियां पगड़ी, बड़ी पगड़ी, हमसे डबल पगड़ी पहनने वाला सिख, हमसे बड़ी दाढ़ी रखने वाला सिख, उनका चेहरा दाढ़ी देखिए, 18 साल का जवान है, दाढ़ी कितनी लंबी है, उनके सर पे पगड़ी कितनी बड़ी है, डबल पगड़ी हमसे उसके ऊपर में है। मगर उसकी खूबसूरत बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां, डीएम बेटियां, एसपी बेटियां, मैनेजिंग डायरेक्टर बेटियां उसी जंगल वाले से शादी करती है, चेहरे पे जंगल है। मगर हमारी सड़ी हुई बेटियां, जो गरीब घर की सड़ी हुई, जिसको न दुरूद ताज याद है, न दुरूद नसरिया याद है, न सूरह यासीन याद है, न सूरह मुल्क याद है, न सूरह दुखान याद है, न सूरह मुज़म्मिल याद है, उसके बावजूद घमंड है, स्कूल में 8 क्लास पढ़ लिया हो गया, ये दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। सड़ी हुई बेटियां वो पंजाब की हायर एजुकेशन वाली लड़की से सबक हासिल करे, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, उनके मजहब ने वही सिखाया है। इसीलिए मजहब के एतबार से जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके सर पे पगड़ी, उनके चेहरे पे दाढ़ी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। प्यारी झील सिंह, उनके सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, वो साहब हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। बूटा सिंह सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, वो हिंदुस्तान के साथ वजीर दाखिला बन गए, वो गृह मंत्री बन गए। विक्रम सिंह जो साहब सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, वो फौज के सरबराह बन गए। तो दाढ़ी रख के फौज का जनरल बन गया, दाढ़ी पगड़ी रख के प्रधानमंत्री बन गया, दाढ़ी पगड़ी रख के साहब ओडीएम बन गया। और हमारा जोकर बच्चा कहता है मौलाना आपकी बात पे अमल करेंगे तो नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दाढ़ी वाले को नौकरी नहीं मिलती। क्या तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है? तू नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है। अगर दाढ़ी की वजह से नौकरी नहीं मिलती है, उस नौकरी पे पाखाना कर दे, उस नौकरी पे पेशाब कर दे, क्योंकि तू नौकर बनने पैदा नहीं हुआ है, तू ताजिर बनने पैदा हुआ है। तेरे पैगंबर ने कहा है बरकतों का 10 ही 9 हिस्सा सिर्फ तिजारत में अल्लाह ने रख दिया है। तू गुलामी मत कर, तू 10 गुलाम को अपने पास रख, तो अगर तू नौकरी गवर्नमेंट की देखता रहेगा, नौकर बन के रहेगा, पगड़ी जाएगी, दाढ़ी जाएगी, टोपी जाएगी, नौकर बन के तू रहेगा। तू तिजारत कर, तू बादशाह बन के रहेगा। मुस्तफा की दुआ तेरे साथ मिल के नौकर 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 मर जा तू नौकरी करते करते। तेरे पैगंबर को तिजारत पसंद है, तेरे पैगंबर को बिजनेस पसंद है, और तेरे पैगंबर ने कहा है कि बरकतों के जो
दर्जे हैं, 9 सिर्फ तिजारत पर रख दिए गए हैं। तू आम लेके बैठ जा, तू सेब लेके बैठ जा, ग्रेजुएट बन, पोस्ट ग्रेजुएशन का PhD डिग्री होल्डर बन जा, बिजनेस करके बैठ जा। तू ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक बंदा गोरखपुर का वह ट्यूशन पढ़ा करके 20 लाख महीना कमाता है। एक बंदा मेरे शहर का, उन्होंने मैथमेटिक्स में MA किया है, और हमारे घर में किराए पे रहने वाला मास्टर शहबाज, वो अंग्रेजी में MA किया उसने, और फिर कोचिंग सेंटर में कोई नौकरी ठोकरी नहीं। मास्टर बनेगा तो 35,000 तनख्वाह मिलेगी, अगर प्रोफेसर बनेगा तो 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलेंगी। वो सिर्फ कोचिंग सेंटर खोल के 5 लाख रुपए कमा रहा है। शहर में जमीन खरीद लिया, शानदार घर बना लिया, और सब एक बंदा को मैं जानता हूँ, वो बचपन से ट्यूशन पढ़ाता है, और फिर वो MSc भी किया मैथमेटिक्स में। उसके बाद कॉलेज बगल में है, बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी बगल में है, वहां का प्रोफेसर 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कमाता है। अगर 10 लाख रुपए महीना उसी कॉलेज के बच्चों को मैथ का ट्यूशन पढ़ा के कमा रहा है। बिजनेस कर, काबिलियत हासिल कर। साहब गोरखपुर का एक लड़का MSc का क्रीम लड़का, उन्होंने तैयारी की, UPSC में बैठा, 3 बार बैठा, नहीं हो पाया। क्योंकि UPSC करने के लिए बोलने की सलाहियत भी चाहिए आदमी के पास, ताकि वो वाइवा निकाल सके। किसी की तहरीर अच्छी है, बोली अच्छी नहीं है, किसी का GS अच्छा है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, किसी की अंग्रेजी अच्छी है, मैथ अच्छा नहीं है। हर सब्जेक्ट में परिपूर्ण रहना, स्किल, महारत हासिल करना, ये बहुत मुश्किल काम है। मैथ का कीड़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री का कीड़ा था, हो सकता है जनरल नॉलेज वाइड नहीं रहा, हो सकता है कि अंग्रेजी उसकी अच्छी नहीं रही हो सकता है कि सब कुछ ठीक है, मगर बोलने की सलाहियत उसके पास नहीं है, नहीं निकाल पाया। उन्होंने हैदराबाद के एक कॉलेज से मैथ के टीचर के लिए, मैथ के लेक्चरर के लिए बहाली निकली, इंटरव्यू दिया, पास कर गया। मालूम है अगर वो DM बन गया होता तो 3 लाख महीना कमाता, लीगल तरीके से, हराम तरीके से 30 लाख कमा लेता, वो अलग बात है, मगर हलाल तरीके से तो 2.5 लाख ही कमा पाता वो। लेकिन नौकरी उसको लगी कॉलेज में, उस कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ा करके पर मंथ 10 लाख रुपए महीना कमाने लगा। ये आज से 15 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। 15 साल पहले बंबई जहां मैं खिताब करने जाता था, जिस घर में मैं ठहरता था, उसी के बेटे का अपना खास ताला था वो लड़का। उन्होंने ऐसा हासिल किया, नौकरी दिमाग में हटा दे। ये बोल उसी लड़के की तरह जो मुरादाबाद का लड़का बोला, क्या बोला? वो बोला कि उनके पास खबर पहुंची कि लड़की को सब कुछ पसंद है मगर दाढ़ी पसंद नहीं है। ये हमारी सड़ी हुई बेटियां, 10 मर्दों से बात करने वाली बेटियां, कमरा बंद करके मोबाइल से 10 मर्दों को लूटने वाली बेटियां, बेशरम बेहया अपनी इज्जतों को तार-तार करने वाली बेटियां। कुरान पे नजर रख, फातिमा ज़हरा की सीरत पे नजर रख, गौसे आज़म की मां पे नजर रख, फिर याद रखना तू जहां कदम रखेगी बरकतों का खजाना निकल जाएगा। और ये 10 मर्दों की गोद में झूलने वाली, और जब वहां जाएगी किसी एक के यहाँ दिल कैसे लगे, जो 10 घर में खाना खा चुकी हो, 10 मर्दों के पास, तो वो एक मर्द के पास कैसे दिल लगेगा जो सारी जिंदगी जब तक तंदुरुस्ती रहेगी जिना करेगी, और जब बीमार पड़ेगी सरकहों पे जाके भीख मांगेगी, और फिर नहीं किसी गैर के साथ भागेगी, उसको 6 महीना निचोड़ के 50 टुकड़े करके उसको 50 जंगल में दिल्ली की उस लगी की तरह उसको फेंक दिया जाएगा। इसलिए बोल, और काली कलोटी औरत जो अपने बाप माँ की खुशी की खातिर बाप माँ के रिश्ते पे राजी रही, आज 90 साल की बूढ़ी हो गई, अपने शौहर के घर में रानी बन के है, साहिब औलाद बन के है, रानी बन गई। अजय नाची कूदी 10 मर्दों के पास, वो सड़ गई, उसकी कुत्ता कत्ल हो गया। वो थापे वाले ने जबलपुर में कत्ल किया, और आफ्ताब नामी पूना वाला 50 टुकड़े में काट के लड़की को फेंक दिया, क्योंकि चेहरा देख के करीब हुआ है। जब चेहरा कब तक देखेगा? बीमार पड़ी चेहरा काला, बीमार पड़ी चेहरा काला हो गया, या उम्र थोड़ा आगे ढली चेहरे का चमड़ा ठीला हो गया, तो फिर क्या होगा? अब तो या तो दरगाह पे बैठ के भीख मांगे, या तो उसको छोटे घर से निकाल दे। जिसने भी मोहब्बत की शादी रचाई, 99% शादियां उसकी फेलियर हो गई, उसको तबाह कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। होटल में इज्जत निचोड़ के बेसहारा छोड़ के लड़का वहां से भाग गया। ये सारे किस्से रोजाना अखबार में आते हैं। लेकिन जो रानी बन के रही, अपनी मर्जी नहीं चलाई, माँ बाप ने जहां शादी करवा दी वहां कर लिया, शौहर को एक्सेप्ट कर लिया, अब वो वहां 90 साल की हो गई, न तलाक है, न तकरार है, न लड़ाई है, औलाद साहिब औलाद बन गई, उम्र बढ़ती जा रही है, शौहर का प्यार मिलता चला जा रहा है। ये है माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करने का इनाम। अब बच्चा उसका पांव चूम रहा है, बच्चा उसका चेहरा देख रहा है, और जो जवानी के नशे में 10 मर्दों से दिल लगाती है, उसका बीच चौराहे पे बेसहारा बन के उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह वो नौजवान मौलाना के पास आता जाता था, दाढ़ी चेहरे
रास्ते पे थी, नमाज पढ़ता था, अरबपति का बेटा दूसरे अरबपति की बेटी बोली सब कुछ ठीक है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, हैंडसम है, मगर ये दिया पसंद नहीं है। उसको चाहिए था कि सिख घराने की बेटियों की जिंदगी का मुताला करे। तो लड़का का बाप बोला उनके दोस्त से कि जाओ मेरे बेटे से कह दो कि दादी शादी से पहले तक मूंड ले, उसके बाद रख लेगा जब शादी हो जाएगी, लड़की अच्छी है, घराना अच्छा है। मगर वो लड़का क्या बोला, मेरे बाप से कह देना कि सारी जिंदगी कुंवारा रहना पड़े मैं रह जाऊंगा, मगर सुन्नत रसूल का कत्ल नहीं करूंगा। सुन्नत रसूल का कत्ल नहीं करूंगा, सुन्नत रसूल का कत्ल नहीं करूंगा। सच कहा मेरे मुस्तफा ने, अल मर्दु मअ मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मोहब्बत अगर फिल्म एक्टर से हो गई, उसको एक्टर जहां जाएगा वहीं जाना होगा। मोहब्बत किसी झूठे नेता से हो गई, वह झूठा नेता जहां जाएगा वहीं जाना होगा। मोहब्बत किसी हरामखोर से हो गई, वो हरामखोर जहां जाएगा जहन्नम वहीं जाना पड़ेगा। मोहब्बत किसी आलिम से हो गई, मोहब्बत किसी वली से हो गई, मोहब्बत किसी नमाजी से हो गई, मोहब्बत गौस कुतुब अब्दाल से हो गई, तो जहां गौस जाएंगे वहीं तू भी जाएगा। इसलिए लिबास हो या सर का बाल हो या हाथ की अंगूठी हो या जीने का कल्चर हो या बर्थडे पार्टी हो या शादी ब्याह और वलीमा की तकरीब हो, हर चीज में मुस्तफा की पैरवी कर, नेकों की गुलामी कर, ताकि यहाँ इज्जत मिले, सेहत मिले, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत मिले। अगर मुस्तफा के खिलाफ किया, शादी किया, वलीमा किया, बरसी की, तीजा की तकरीब की, अगर मुस्तफा के खिलाफ किया तो यहाँ भी रुस्वा होगा, यहाँ सेहत जाएगी, यहाँ इज्जत जाएगी, काफिरों के पांव का फुटबॉल बनेगा और मरने के बाद जहन्नम की आग में जलेगा। इसलिए दोस्ती काफिरों से मत कर, दोस्ती मुसलमानों से कर, मुत्तकी से कर, आलिमों से कर, नेक लोगों से कर। नेक लोग जन्नत जाएंगे, तू भी जन्नत जाएगा। अल-मर्उ मअ मन अहब, ए मैन विद द दोस्त हुम ही नफ्स, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अर्रजुलु अला दीनि खलीली, मोमिन अपने दीन के दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर, उसे देखना चाहिए वह दोस्ती किससे कर रहा है। सोहबतें अच्छी, दोस्ती अच्छों से, बच्चों की तरबियत अच्छी हो। जरा वो हदीस पाक सुनिए जो मैंने कहा था, हर घर की दीवार में वो हदीस लिख के रहनी चाहिए। हुजूर ने क्या फरमाया, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, बंदे का पांव अपनी जगह से क़यामत के दिन हटेगा नहीं जब तक के 4 सवाल उससे न हो जाए। पहला सवाल, अन उमरिही फीमा अफ़ना, यह कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। बस 2 टका कमाने का जुनून सब पर सवार है। कंप्यूटर पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, वो साहब मास्टर बन जाएं, डीएम बन जाएं, कोई ये नहीं बोलता है सुन्नत पर अमल करें, कुरान पढ़ें, दुनिया में 8 घंटे दुकान पर बैठें, 5 टाइम नमाज भी पढ़ लें, जन्नती बन जाएं, दुरूद पढ़ें, कलमा पढ़ें, नेक बने, जन्नती बने, हुजूर की शफाअत कैसे मिलेगी। कोई चर्चा घर में नहीं। घर में चर्चा है चोरों का, डकैतों का, नेताओं का, हराम से दौलत कमा के 10-20 मकान बनाने वालों का। तो बच्चों के दिमाग में ही जुनून सवार है, नहीं मौला साहब मदरसे में पढ़ेंगे हाफिज बनेंगे, क्या मिलेगा मदरसे में। मदरसे में पढ़ेंगे हाफिज बनेंगे, क्या मिलेगा। यानी एक दिमाग में एक बात फंसी हुई है, जबकि हाफिज बनने वाला, आलिम बनने वाला, इस्लाम ये कहता है क्या कि तुम सिर्फ ट्यूशन पढ़ाओ, तुम सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाओ, तुम सिर्फ अजान दो, तुम सिर्फ मकतब में बच्चों को अलीफा पढ़ाओ, ये कहता है क्या। इस्लाम कहता है ये, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह कहता है तू दुआ कर इलाही मुझे दुनिया में भी अच्छा रख, मुझे मरने के बाद भलाई अता फरमा। तो क्या मतलब अल्लाह तुझको दुआ करने का ढंग सिखा रहा है कि दुनिया में भी खुशहाल रह, दुनिया में भी अच्छा रह। तो दुनिया में अच्छा रहने के लिए क्या करना होगा। दुनिया में अच्छा रहने के लिए मेहनत करनी होगी, मुशक्कत करनी होगी, यहाँ तुम्हें स्ट्रगल करना होगा, जद्दोजहद करना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हें खेत में जाना होगा, हल चलाना होगा, दुकान में जाना होगा, बिजनेस करना होगा, 30-20 साल तक पढ़ना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, फिर बाकी जब तक नौकरी करना है तो हम 60-62 साल तक तुम्हें ऑफिस जाना होगा, दफ्तर स्कूल जाना होगा, मेहनत करनी होगी, बिजनेस करना होगा, वतन से बेवतन होना पड़ेगा। दिल्ली का एक मौलवी साहब बगल में दिल्ली है, वो मौलवी साहब मदरसे से पढ़ने लिखने के बाद फारिग हुआ, मस्जिद पकड़ लिया, कहा अब मस्जिद पकड़ के रहेंगे, नमाज पढ़ाएंगे। हम तो नहीं कुछ तरक्की कर पाए, अलबत्ता इस मस्जिद में रह गए तो बाल बच्चे को दिल्ली में पढ़ा लिखा के कोई नौकरी दिला देंगे, कारोबार करवा देंगे। पर मस्जिद वाला इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, ये लोटा क्यों टूटा है, ये मुसल्ला क्यों फटा है, ये बल्ब क्यों टूटा है, ये पंखा
पंखा क्यों बंद है, इतना टॉर्चर किया, तनख्वाह है 200-250, इतना टॉर्चर किया कि बेचारा समझ लिया कि अब इमामत करना बहुत मुश्किल काम है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अलबत्ता 2-3 साल तक सह लेता हूं। उन्होंने एक प्लान बनाया, उस प्लान के तहत वर्क शुरू किया। उन्होंने मदरसे की डिग्री से उन्होंने तिब्बिया कॉलेज में हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, BUMS में एडमिशन करवाया। अब वहां करने में 3 साल लगेंगे। अब 3 साल दिल्ली में कहाँ रहो, कैसे खाओ, उसी मस्जिद में। अब वो सारा नाश मुतवल्ली और ट्रस्टी का उठाना शुरू किया। एक टीचर क्लास का आदमी बोलता, अरे बल्ब टूटा, हाँ हुजूर। मुतवल्ली बोलता, अरे मुसल्ला उल्टा हुआ, हाँ हुजूर। यानी जी हुजूरी शुरू कर दी कि 3 साल रहना है मुझको। सारा नाज उठाया, रात रात भर पढ़ता रहा, रोजाना पाबंदी से कॉलेज जाता रहा, स्कूल में इमामत करता रहा। जब डिग्री 3 साल में अच्छी मिल गई उसको BUMS की, उसके बाद दूसरे मोहल्ले में क्लिनिक खोला। जो डॉक्टर सुस्त काम चोर सिनेमा देखने वाला मोबाइल चालक होता है, वो डॉक्टर कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। जो हमेशा स्टडी करता है, किताबों को पढ़ता है, नई नई बीमारी पे रिसर्च करता है, उन बीमारियों की दवाइयों पे रिसर्च करता है, नई नई कंपनी के प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करता है, कहाँ किस दवाई में किसमें ज्यादा फंक्शन है और ज्यादा फायदा है, उसको हमेशा मेहनत में रहता है। वो सटीक दवाई लिखता है, मरीज की भीड़ उसके पास लगती है। उन्होंने मेहनत शुरू कर दी, क्लिनिक चल पड़ी उसकी, दवाखाना चल पड़ा। अब वो दवाखाना के लिए अपनी अलग से जमीन खरीद ली, अपनी जमीन पे क्लिनिक हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने इमामत से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कॉलेज में लेक्चरशिप की नौकरी मिली, मेहनत करके एग्जाम देके लेक्चरशिप उन्होंने निकाल लिया। अब कॉलेज का लेक्चरर भी बन गया और उसके बाद साहब एक क्लिनिक का शानदार डॉक्टर भी बन गया। ओवर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम में क्लिनिक में और क्लास टाइम में वहां साहब कॉलेज में इमामत छोड़ दी। पैसों की बारिश होने लगी, इस तरह क्लिनिक पैसों की बारिश होने लगी। अपना खुद का घर, अपनी खुद की क्लिनिक, बच्चों को पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी में, अपनी बेटी को आला तालीम दिलाकर जबरदस्त खानदान में शादी करवा दी। अगर सिर्फ खाओगे सोओगे, अब बोलोगे कहां से कोई आए हमको पैसा दे दे, नहीं डेवलप कर पाओगे। उस डॉक्टर की तरह सबक सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। दुनिया की खुशहाली के लिए दिमाग चलाना होगा, जमीन खुदाई करके फसलें पैदा करनी होंगी, मेहनत करना होगा, स्कूल चलाना होगा, मदरसा चलाना होगा, इमामत करनी होगी, बिजनेस करना होगा, तो यहाँ भी खुशहाल रहोगे। अगर बैठे बैठे वेट करोगे कि आसमान से हीरा गिर जाए या जमीन से कोई सोने की हांडी निकल जाए, या अजमेर जाके बैठ जाओगे कि बाबा मुझको दे दो, बाबा मुझको हांडी दे दो, बाबा वहां से निकालेंगे तो तमाचा मार के। ऐसा नहीं होता है कि गेहूं लगा के मेरे पास आ जाओ और बोलो वहां बासमती धान निकाल दीजिए, आम का पेड़ लगा के अजमेर आ जाओ और बोलो कि बाबा इसमें सेब लगा दीजिए। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि बाबा मेरे घर में एयरपोर्ट कायम कर दीजिए। आप सुल्तानुल हिंद है, सब देते हैं, बाबा सब नहीं देते हैं। बाबा वो बाबा अल्लाह के वली है, बाबा इस्लाम समझाते हैं, इस्लाम की खिदमत कर रहे इंडिया आया है, अपना वतन ईरान छोड़ के आया है, 20 साल इल्म हासिल करके आया है, 30 साल मुर्शिद का बिस्तर ढोके आया है, ज़ाहिरी और बातिनी दोनों उलूम हासिल करके अब हिंदुस्तान के बुतखाने में यहाँ हुस्न की ताकत से लड़ने आए हैं। रूहानी ताकत से लैस होकर, ज़ाहिरी ताकत से लैस होकर तब वह हिंदुस्तान आए थे। गाली सुनी है उन्होंने, सारा ताना सहा है, उस पर पानी बंद करने की धमकी उन्होंने सही है, उन शहर में खुजी भी तलवार लेके चला गया, उस जुल्म को सहा है, सारा जुल्म सहते रहे। रात भर इबादत खुदा राजी हो और दिन भर तकलीफ ताकि मुशरिक कलमा पढ़ के मोमिन हो जाए। तब अल्लाह ने वो दिन दिखलाया मेहनतों के बाद कि 90 लाख मुशरिक उनकी मेहनतों से कलमा पढ़ के साहिब ईमान हो गया। उनकी मेहनतों से ऐसे नहीं हो गया, वो अपने घर से निकले वतन से बेवतन हुए। उन्होंने 20 साल इल्म हासिल किया, हाफिज बने, कारी बने, मुफ्ती बने, मुबल्लिग बने। उसके बाद रूहानी ताकत हासिल करने के लिए मुर्शिद उस्मान हारूनी के साथ रहे। वो गौसे आजम मदरसात वली थे, पैदा होते ही वली पैदा हुए थे, मगर उन्होंने 20 साल तक इल्म हासिल किया, 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खाया, जंगल में गिरी बड़ी सब्जियों को खाते रहे, तब जाके मारिफत का नूर हासिल किया। फिर बगदाद की महफिल में आ गए, मस्जिद को आबाद किया, मदरसे को आबाद किया, मरा हुआ सिस्टम मदरसा का जिंदा किया, खानकाह को जिंदगी दे दी। 100 मौलवी मिल के हसद करते हुए आपको लाजवाब करने आया था, एक निगाह डालकर सबको मबहूत और मुतहय्यर कर दिया। रूहानी ताकत, ज़ाहिरी ताकत, तब मदरसे को जिंदगी मिली, खानकाह को जिंदगी मिली, ऐसी जिंदगी मिली कि नाम ही मोहिउद्दीन पड़ गया, दिन का जिंदा करने वाला। तब अल्लाह ने
کہا اللہ نے انعام دیا، اے معین الدین تو جیا میرے لیے، تو محنت کیا میرے لیے، تو 40 سال تک بھوکا رہا میرے لیے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھا میرے لیے، 25 سال درخت کا پتا کھا کر کے تو معرفت کا نور حاصل کیا میرے لیے۔ اب جب دین کو زندگی دے دی ہے تو اب جب تک دین رہے گا عبد القادر تیرا ٹنکا بجتا رہے گا۔ اب آج کروڑوں قادری دنیا میں ہے، یا ان کی دینی خدمتوں کا انعام ہے، دین کو زندگی دی تو جب تک دین رہے گا عبد القادر تیرا نام رہے گا، جب تک دین رہے گا معین الدین تیرا نام رہے گا۔ پرہیز قبیلے کے پہچان تھے، باپ دادا قبیلے پرہیز افغانستان چھوڑ کے انڈیا آ گئے، رات میں صرف 2 گھنٹے سونا ہے، باقی 22 گھنٹے دین کی خدمت کرنا ہے، گالی گلوچ سن کر 1000 کتابیں لکھ کر دین کی خدمت کرنی ہے، تمام بدعقیدوں سے جنگ کرنی ہے، گالی گلوچ سننا ہے، زمین کی آمدنی سے مسجد مدرسہ کتابیں چھپوا کے سنیت کا کام کرنا ہے۔ جب سنیت کا کام کیا، کروڑوں مسلمانوں کا ایمان بچایا، تب اللہ نے احمد رضا کو بریلی کے سوداگران سے اٹھایا اور شہرت کے اس آسمان پہ پہنچا دیا۔ امریکہ میں رضا رضا، ہالینڈ میں رضا رضا، آسٹریلیا میں رضا رضا، سری لنکا میں رضا رضا، ہر طرف رضا رضا، اسی لیے ہے وہ دین بچایا ہے، کروڑوں کا ایمان بچایا ہے، اپنی نیند قربان کیا ہے، دین کی راحت قربان کی ہے، تب جا کے رضا کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ جب تک سنیت رہے گی تیرا نام رہے گا، جب تک دین رہے گا تیرا نام رہے گا۔ علی گڑھ والے روکنے آ گئے، سہارن والے روکنے آ گئے، نجد والے روکنے آ گئے، یہ پہچان ہے یا قصیدہ ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی عظمت کو مجلو کرنا چاہا، مگر سب ان سے چلنے والوں کے گول ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، یونیورسٹی میں رضا، کالج میں رضا، خانقاہ میں رضا، نام کے ساتھ رضا، کروڑوں نام کے ساتھ رضا، توصیف رضا، شہریار رضا، حامد رضا، یوسف رضا، محسن رضا، اختر رضا، فلاں رضا، ایک رضا تھا، آج کروڑوں نام کے ساتھ لفظ رضا ہے۔ یہ دینی خدمتوں کا انعام ہے، جو جیے گا رب کے لیے، جو مرے گا رب کے لیے، جو دین بچائے گا وہ ایک خطے میں محدود نہیں رہے گا، ہر زبان پہ چرچا رہے گا۔ آج ایسا لگ رہا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس ہم تو دیکھیے وہ ایک آقا رضا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him a name, Allah gives him a name, Allah gives him a name. یہ زندگی قیمتی زندگی ہے، گٹکا کھانے میں مت گزارو، سگریٹ پینے میں مت گزارو، دوسروں کا منہ دیکھنے کے لیے چوک چوراہے پہ مت گھومو۔ ایک اسی اتر پردیش میں اعظم گڑھ علاقے میں ایک گاؤں ہے، وہاں کی آبادی ہے 200 گھر ہے اس گاؤں میں، 145 IAS آفیسر ہے، 145 IAS آفیسر ہے۔ بس جوکر کی طرح بال رکھنا ہے کاندھے تک، منہ میں گٹکا چباتے رہنا ہے صبح، اور پھر کالدان لے کے بیٹھنا ہے، کھایا پیتا کھایا پھینکا، اور ایک سگریٹ ختم دوسرا سگریٹ چالو کر دیا، ایک بیڑی ختم دوسری بیڑی چالو کر دیا، وہ بیڑی پیتے پیتے مر جائے گا، کوئی بڑا کام نہیں کر پائے گا۔ بڑا کام بہت سارا پیر ہے انڈیا میں جو بیڑی پینا پھینکنا، بیڑی پینا پھینکنا، مگر ہمارا ایک پیر تھا جس کو جب بھی دیکھا تلاوت کرتا دیکھا، جب بھی دیکھا درس بخاری دیتا دیکھا، جب بھی دیکھا امر بالمعروف کرتا دیکھا، جب بھی دیکھا مدرسہ میں دیکھا، جب بھی دیکھا مفتیوں کی جھلمٹ میں دیکھا، جب بھی دیکھا علماء کے ہجوم میں دیکھا، جب بھی دیکھا خود بھی کام کرتا رہا۔ اس لیے اللہ نے وہ شہرت دی کہ مودی جی دیکھتے رہ گئے، پردھان منتری امریکہ کا پریزیڈنٹ دیکھتا رہ گیا، یہ کون فقیر تھا جو دنیا سے گیا، کروڑوں کی بھیڑ لگا کے چلا گیا، یہ نہ واٹس ایپ پہ تھا، نہ یوٹیوب پہ تھا، نہ انسٹاگرام پہ تھا، نہ فیس بک پہ تھا، یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ 1 کروڑ لوگ کہاں سے آ گئے؟ دنیا کو پتا چلا مادی طاقت اور ہے، روحانی طاقت اور ہے۔ روحانی طاقت کا جلوہ ہے یا اسپریچول فورس کا جلوہ ہے۔ اس لیے یہ قیمتی زندگی کا ایک منٹ کام میں لگائی، پڑھیے لکھیے، دوسروں کا منہ مت دیکھنے مت جائیے۔ بچہ مدرسے کا کیا بولتا ہے؟ میری چچیری بہن کی شادی ہے، میرے دادا کی برسی ہے، میرے ساتھ چچیرے بھائی کی بارات ہے، نہ چچیرے مچیرے کرتے رہو گے ساری زندگی، کوئی بڑا خطیب، بڑا مدرس، بڑا مفکر یا بڑا IAS آفیسر نہیں بن پاؤ گا۔ تاج الشریعہ 3 سال تک مصر میں رہے، اب مصر
مصر کے بازو میں، وہاں ہے دریائے نیل جامع ازہر کے بازو میں۔ 3 سال رہے، ایک بار بھی دریائے نیل نہیں دیکھا، صرف کتاب دیکھا، صرف کلاس روم دیکھا، صرف مسجد کی چٹائی کو دیکھا، باقی وہاں کا نہ مارکیٹ دیکھا، نہ وہاں دریائے نیل کو دیکھا۔ جب دوسرے سفر میں وہاں گئے، فخر ازہر کا ایوارڈ جب ملا، اس کے بعد جب نیل کے اوپر سے گزرنے لگے تو ایک طالب علم آپ کا مرید بولا، حضور نیل کے بیچ سے گزر رہے ہیں۔ تب جواب ملا کہ 3 سال میں رہا، کبھی نیل نہیں دیکھا، فرصت کہاں تھی کتابوں سے کہ نیل کو دیکھتا۔ تو ریزلٹ کیا ملا؟ ریزلٹ کیا ملا کہ ازہر صرف مصر کی یونیورسٹی نہیں ہے، جس طرح پوری دنیا میں کیمبرج کا مقام ہے، آکسفورڈ کا مقام ہے، اسی طرح دینی نقطۂ نظر سے ازہر یونیورسٹی کا مقام پوری دنیا میں ہے۔ دنیا بھر کے لاکھوں بچے وہاں سینکڑوں فیکلٹیز میں پڑھتے ہیں، عرب میں، عربی زبان میں فزکس کیمسٹری سب پڑھائی جاتی ہے، مگر جو عرب میں پیدا ہوئے، جس کی مادری زبان عربی تھی، مگر وہ وہاں توق نہیں کر پایا۔ ہندوستان میں پیدا ہونے والا، اردو زبان جاننے والا، عربی الگ سے سیکھنے والا، اس مصر یونیورسٹی ازہر میں سارے بچوں میں امتیازی مقام حاصل کیا۔ جو کتاب دیکھے گا، جو پگڑی نہیں دیکھے گا، جو چپل نہیں دیکھے گا، جو کپڑا نہیں دیکھے گا، جو کھانا نہیں دیکھے گا کہ کھانا کیا مل رہا ہے، اور جو دال دیکھے گا، دال پتلی ہے نہیں پڑھیں گے، جو روٹی دیکھے گا، روٹی موٹی ہے نہیں پڑھیں گے، جو شوز دیکھے گا، جو ساکس دیکھے گا، جو صاحب قرآن خوانی کے نذرانے دیکھے گا، جو کپڑے کا پریس دیکھے گا، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر پائے گا۔ ہمارے پورنیہ شہر کا ڈاکٹر آج کا سرجن اربوں میں کھیل رہا ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں اس کی چپل ٹوٹی تھی، ان کے سر کے بال اڑنے لگے تھے، اس قدر اسٹڈی کیا اس نے، میڈیکل کی جو پڑھائی پڑھ رہا تھا، اس قدر محنتیں کرتا تھا کہ سر کے بال اس کے اڑنے لگے تھے، کپڑے میں پریس کرنے کی فرصت اس کو نہیں ملتی تھی۔ آج وہ بچہ میرے شہر کا سب سے بڑا سرجن ہے، وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ اس لیے پڑھنے کے زمانے میں ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنا ہوگا۔ چچیرے میرے بھائی کی شادی میں میری اپنی خاص بہن کا انتقال ہو گیا، میں تبلیغ کے دورے پر راجستھان میں تھا، آ نہیں پایا، شریک نہیں ہو سکا۔ سرکار تاج الشریعہ مصر میں تھے، ان کا اپنا باپ مفسر اعظم ہند کا انتقال ہو گیا انڈیا میں، وہ نہ پڑھائی چھوڑ کے یہاں آئے، نہ جنازے میں حاضر ہو سکے۔ دنیا میں بڑا کام کرنے کے لیے ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنا ہوگا، کھانے پہ نظر نہیں، بس کھا لے جس سے زندہ رہ سکے، پہن لے جس کے سر پہ چھوٹ سکے، باقی سارا فوکس، ساری طاقت اسٹڈی کتاب کے مطالعے پہ کرنا ہوگا۔ 5 کتاب سلیبس میں ہے تو 50 کتاب ایکسٹرا پڑھنا پڑے گا، تب جا کے بڑا مصنف، بڑا خطیب، بڑا مدرس، بڑا IAS آفیسر، بڑا تھنکر، بڑا مفکر بنے گا۔ محنتیں کرتے جاؤ، جنت وہاں ملے گی، عزت یہاں ملے گی، راحت یہاں ملے گی۔ اس لیے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے یہاں کے لیے محنت کرنی ہوگی، اور آخرت کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی۔ اجمیر جا کے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، اجمیر جاؤ، کہو بابا السلام علیکم، اپنا وطن چھوڑا ہم ہندوستانی کے لیے، اپنا سچین قربان کیا ہمارے لیے۔ آج ہندوستان میں جتنے مدرسے مسجدیں سروں پہ ٹوپیاں ہیں، وہ سب آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ بابا میں آپ کو زندگی میں دیکھ نہیں سکا، میں آپ کی قبر دیکھنے آیا ہوں، میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ ہندوستان کا موسیق، ہندوستان کا راجا، ہندوستان کا حقیقی بادشاہ، ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کرنے والا مبلغ اعظم، میں آپ کی چوکھٹ دیکھنے آیا ہوں۔ وہاں جاؤ، اعلیٰ حضرت کا مقام مستجاب ہے، دعا قبول ہوگی، لیکن ایئرپورٹ والی دعا مت کرنا، اور وہاں یہ اپنے گھر میں ایئرپورٹ لگا دیجئے، اور آم لگا کے جاؤ کہ بولنا بابا ہمارے آم میں سیب لگا دیجئے میرے آم کے پیڑ میں، ایسا نہیں ہوگا۔ بابا کون دعا کرتے، کون دعا قبول ہوتی ہے؟ بچہ خوب محنت کیا، 8 گھنٹے پڑھا، میٹرک میں 90% نمبر لایا، +2 میں 12 گھنٹے پڑھا، 95% نمبر لایا، گریجویشن میں 99% نمبر لایا۔ اس کے بعد چلا گیا اجمیر، کہا بابا میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی، میں 18 گھنٹے تک اسٹڈی کی، 99% نمبر لایا، محنت میری۔ بابا اب دعا کر دیں، اب ہاتھ اٹھا دیں، ادھر سے محنت چلے گی، ادھر سے خواجہ ہند ہاتھ اٹھا دیں گے قبر میں، ادھر سے محنت چلے گی، ادھر سے دعا چلے گی، کامیابی آسمان سے زمین پہ اتر جائے گی، کامیابی قدم چومے گی، کامیابی قدم چومے گی۔ ایسا جس طرح سے آم کے پیڑ سے سیب نہیں نکلتا، اسی طرح سے بیٹھے بیٹھے خیالی پلاؤ پکانے سے، سپنا دیکھنے سے کام نہیں ہوتا۔ یہ سپنا دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ محنت کرنے کی جگہ ہے۔
اور آپ یہ مت کبھی نرفس ہونا کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام مٹ جائے گا، ایسا کبھی نرفس مت ہونا۔ آج کی تازہ خبر تم نے سنا تو سب کو معلوم ہوگا کہ جو بولا تھا 3 دن میں فلسطین مٹا دیں گے، غزہ مٹا دیں گے، آج 16 مہینے کے بعد اسی نہتھوں کے سامنے بیٹھ کر دنیا کا مہاشکتی ان کے سامنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کی بھیک مانگ رہا ہے، اور جس کو کچھ نہیں سمجھا تھا مٹا دیں گے 3 دن میں، 16 مہینے کے بعد پوری طاقت کے ساتھ زندہ ہے۔ دنیا کے 2 سپر پاور کو اپنے سامنے جھکا کے رکھ دیا، وہ تو مرنے کے لیے قسم کھا رکھا ہے کہ ہمارا خون بہے گا اسی زمین پر بہے گا، ہماری قبر بنے گی اسی زمین پر بنے گی۔ تو ایک طرف غم گرتا رہا، ایک طرف کلمے کی آواز بلند ہوتی رہی، تو دنیا دیکھ لیا غم کی طاقت فیل ہو گئی، کلمہ کی طاقت غالب آ گئی، کلمہ کی طاقت غالب آ گئی۔ اس لیے تم کبھی مت گھبرانا کہ ہمارا اسلام خطرے میں ہے، نہیں، آندھی آتی ہے چلی جاتی ہے، بارش آتی ہے چلی جاتی ہے، طوفان آتا ہے چلا جاتا ہے، موسم بدلتا ہے چلا جاتا ہے، کڑاکے کی سردی تھی چلی گئی، بارش کا موسم تھا چلا گیا، سیلاب آیا چلا گیا، یہ وقتی آندھی میری وجہ سے بدعملی کی سزا کے طور پر آتی رہے گی، جاتی رہے گی۔ آندھی جائے گی موسم نارمل ہو جائے گا، طوفان جائے گا موسم نارمل ہو جائے گا، سیلاب جائے گا موسم نارمل ہو جائے گا، نہ آندھی رہے گی نہ سیلاب رہے گا، کیا رہے گا؟ مدرسہ رہے گا، مسجد رہے گی، خانقاہ رہے گی، آذان رہے گی، جلسہ رہے گا، عالم رہیں گے، دین کا بیان ہوگا، کوئی دل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی دل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فضول کاموں، فضول باتوں اور فضول کھانا کھانے سے